امریکی صدر کا ایران سے آج مذاکرات شروع ہونے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ ایران پر حملہ ہوتا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ایران سے جنگ نہیں، معاہدہ چاہتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات نے حملے روکنے کا کہا۔ اتحادیوں کی درخواست پر ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اتحادی ممالک فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ اب ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کی بحالی کا معاہدہ موجود ہے۔ ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ امریکہ سے بات چیت میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ جہاں ضرورت ہو قطر مدد فراہم کرتا ہے۔ چین کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ امریکہ سے مذاکرات کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران اس وقت امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ ہماری مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان اس وقت ایران میں ہیں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے کوئی نئے ثالث سامنے نہیں آئے ہیں۔ ابنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کوشش ہے جلد از جلد ایسا طریقہ کار طے ہو جس سے جہاز رانی کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ صرف عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں ہوگا۔ متفقہ راستہ شمالی یا جنوبی راستہ نہیں بلکہ ایسا راستہ ہوگا جس پر فریقین اتفاق کریں۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کی بندش امریکہ کی معاہدہ شکنی کا نتیجہ ہے۔ امریکی جارحیت رکنے تک ابنائے ہرمز بند ہی رہے گا۔ میں مظفر آباد کی 9 میں سے 7 سیٹوں پہ اوپر جو ہے وہ الیکشن مکمل ہوا ہے۔ ان 20 سیٹوں میں جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 13 سیٹوں پہ اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر اسمبلی الیکشن میں سادہ اکثریت ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں 23 نشستیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کی۔ دوسرے مرحلے میں 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 12 مہاجر نشستوں میں سے 10 پر نون لیگ کامیاب ہوئی۔ پیپلز پارٹی صرف 3 سیٹیں حاصل کر سکی۔ LA 27 اور LA 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر کل پولنگ ہوگی۔ انتخابی عمل شروع ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا واویلا مچایا، لیکن کشمیر کے عوام نے نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دیا۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی نے کل عدم ایکشن کمیٹی سے مل کر ہنگامہ کروایا۔ رانا ثناء اللہ نے چودھری لطیف اکبر پر حملے کی تردید بھی کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے نون لیگ کی فتح مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی، الزام برائے الزام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی تحمل کا مظاہرہ کرے، اچھا ہوتا کہ الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو نون لیگ کا سہولت کار قرار دے دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ الیکشن کمیشن بطور پارٹی نون لیگ کے ساتھ تھا۔ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ 2024 میں فارم 47 کی حکومت بنی تھی، یہ خیراتی مینڈیٹ سے اقتدار میں آئے۔ کل چیف الیکشن کمشنر کو دھوپ میں بارش نظر آ رہی تھی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے قوم کو گمراہ کیا۔ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی تسلیم کرے، بارش کو جواز نہ بنائے۔ ہم فارم 47 والے ہیں تو آپ آئینی عہدوں سے استعفے دیں۔ صدر پاکستان کو کہیں مستعفی ہوں۔ گورنر پنجاب سے بولے پیکنگ کریں، سامان اٹھائیں۔ ہم تو فارم 47 والے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کی حکومت کیسے بنی؟ وہ بھی خیراتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب۔ مزید کہا بلاول کو غلط انفارمیشن دی جاتی ہے، غلط اور جذباتی بیان دلوائے جاتے ہیں جس پر بلاول کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ پہلے کہا گیا صدر آزاد کشمیر پر فائرنگ ہوئی، پھر کہا گیا کہ دھکم پیل ہوئی۔ ہر الیکشن میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی پارٹی دیکھی جو اس بات پر خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ کیوں زیادہ ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بولی کشمیری عوام نے ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پونچھ ڈویژن میں بھی شیر کی فتح ہوگی۔ نون لیگ فتح اور دوسری جماعت رونے کے لیے تیار رہے۔
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग 12 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। LA 27 और 28 में खराब मौसम पर इलेक्शन मुलतवी हुए। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त बरोज पीर को सजेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का नून लीग की पॉलिसीज पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जमहूरी अमल मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नून लीग की कामयाबी पर खुशी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि कोई और नहीं, बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतने के लिए हर हद पार कर गई। L31 में PP कारकुन को कत्ल कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर भी हमला हुआ। गोली और लाठी के जोर पर वोट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के तीसरे मरहले का बॉयकॉट करना चाहिए। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश, नशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। ढोक खबाक की मरकजी शहरा पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल, एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़या रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गोजर खान, पिंड दादन खान, मलिकवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। उधर जैकबाबाद में ठुल की मूसा अल्लाह आबाद नहर ओवरफ्लो। पानी रहीमाबाद कॉलोनी में दाखिल, मुतादिद घर ज़ेरे-आब। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। सहवन के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी LS हिफाजती बंद से टकरा गया। 30 से ज़ायद दिहात डूब गए। मजीद देहात की जानिब जाने वाला माही ओठोर रोड भी ज़ेरे-आब। ज़मीनी रास्ते मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास, मिर्च और दीगर फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी रोकने के लिए सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और इराकी हम मंसूबों को फ़ोन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से बातचीत में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी, अमनो इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में अमन और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए सिफारती राब्तों का तसलसल इंतहाई अहम है। अब्बास इराक़ची की इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से भी बातचीत हुई। ईरान और इराक के वज़ीर ख़ारजा का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। उधर पाकिस्तान इनकलाब का अपनाए हुर्मज़ के ऊपर परवाज करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। मुज़ाकरात की बाज़गश्त पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $5 कमी के बाद $79 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की भी बड़ी कमी के बाद $83 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबन क्रूड $4 कमी से $80 फी बैरल का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स 2105 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। में भी कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। कश्मीर में दहशतगर्दी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। साबिक कठपुतली वजीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला का एतराफ़। कोलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने का भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहाँ से आ रहे हैं? कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म होते ही मशकूक वाक़यात हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वज़रा ने एतराफ़ किया है कि भारतीय एजेंसियाँ खुद ऐसे ड्रामे रचा रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश कर दी। मरियम नवाज की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी तलब कर लिया गया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मिराआती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। इस मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कि बच्चों में नशोनुमा की कमी बड़े चैलेंजेस में से एक है। बच्चों की नशोनुमा के लिए मरबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दिया जाएगा। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजीद 7 अजला तक तौसीह देने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 5,85,000 टन सरप्लस चीनी बरामद करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खतूत लिख दिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत में लिखा कि 15 जुलाई तक मुल्क में 34 लाख मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। 15 नवंबर तक 11,58,000 मेट्रिक टन चीनी सरप्लस रहने का इम्कान है। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महाफिल नात कवाली और जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल हमलों से बाज न आया। सिहूनी फौज की बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहरी दिफा के मुताबिक फिजाई हमलों में रिहायशी अपार्टमेंट्स और बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया गया। हमास ने सालिसों से फौरी मुदाखलत और जारहियत रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा कुशम पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे।